नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। तो आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है। जो विक्रम रोवर है वो लैंड किया है, उसने इतिहास रचा है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पर यानी उतरने वाला ये पहला देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग Which is going to be the vertical descent. तो चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया की शुरुआत शाम 5:44 पर हुई और ठीक शाम 6:04 पर इसकी लैंडिंग हुई। अब इसके अंदर के रोवर प्रज्ञान के निकलने का इंतजार है। 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। जब इसके डस्ट सेटल होगी वहाँ की, उसके बाद विक्रम सक्रिय हो जाएगा और तस्वीरें भेजेगा। कहा यह जा रहा है कि दोनों एक दूसरे की सेल्फी भेजेंगे। तो चांद की संरचना पर जानकारी भेजी जाएगी। 14 दिन तक कहा जा रहा है वहाँ पर ये रहेगा। और आइए सुनते प्रधानमंत्री ने सफलता पर क्या कहा। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभ। Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir. तो लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है और देश में जश्न हर जगह ही मनाया जा रहा है। आइए आपको एक एक करके तमाम शहरों की, राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं। The entire mission operations right from launch till landing
happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. CSIR मुख्यालय दिल्ली से लैंडिंग के दौरान के हाल बता रहे हमारे सहयोगी परिमल कुमार। फिलहाल हम CSIR हेडक्वार्टर में हैं, जहां पे भारत उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है और हम लोग गवाह बनने वाले हैं, जहां पर चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। दूरी बहुत कम रह गई है, रह रहकर तालियां भी बज रही हैं, खामोशी भी है और एक तरीके से सब लोग जो हैं वो धैर्य बना के बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पे लगातार वो दिखाया जा रहा है। लोग जो हैं, हर किसी के हाथ में मोबाइल आपको नज़र आएगा, हर इस पल को कैद करना चाह रहा है, हर कोई इस पल को कैद करना चाह रहा है। 40 दिन का ये वक्त है जब 14 जुलाई को प्रक्षेपण हुआ था और उसके बाद अब जो वक्त है अभी फ़िलहाल, जिसमें एक तरीके से सांसें थमी हुई हैं, लेकिन हर कोई जो है इस पल को कैद करना चाहता है। 15 साल में ये तीसरा मौका है जब चंद्रमा पे यान जो है वो भेजा गया। और अब यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट आपको नजर आएगी, क्योंकि यही वो पल है जिसका इंतजार हो रहा था। हर कोई खड़ा होके इस पल का गवाह बनना चाहता है, हर कोई एक तरीके से अपना उत्साह दिखा रहा है। और सीधे तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से एक जयकारे लग रहे हैं भारत माता के, क्योंकि इस पल का इंतजार बहुत लंबे वक्त से था और यहाँ पर सफलता मिल गई है। जिस पल को लेकर कोशिश की जा रही थी, अब चंद्रमा पर पानी, खनिज और क्या क्या मटेरियल्स मौजूद हैं, अब विक्रम लैंडर के जरिए जो रोवर निकलेगा उसके कैमरे कैद करके पिक्चर भेजना शुरू करेंगे। और भारत के लिए नहीं, दुनिया के तमाम देशों के लिए जो तस्वीरें आएंगी, जो शोध होगा, वो अपने आप में बहुत अहम होगा। और आप देखिए कि लोग अलग अलग जगहों से भी इसी तरीके से इस पल के गवाह बनेंगे। और अब यहाँ देखिए एक तरीके से मुबारकबादी की बात है और आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इंतजार हो रहा था इस पल का, वो इंतजार लंबा जरूर था, लेकिन अब उस इंतजार को लेकर अब ऐतिहासिक पल बना है, इतिहास बना है और उसके हम सब फिलहाल गवाह हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया। बेंगलुरु में इसरो मीडिया सेंटर से हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। और जैसे ही लैंडर ने चांद की धरती पर कदम रखा, देखिए यहाँ क्या उत्साह है, यहाँ उत्साह देखिए सुरक्षा कर्मियों का, यहाँ उत्साह देखिए उन सभी लोगों का जो इसरो में काम करते हैं, उन सब का उत्साह देखने के लायक है। इट्स अ बिग अचीवमेंट, बहुत अचीवमेंट, बहुत अच्छा, भारत माता की। ये देखिए यहाँ पर लोग इसरो में जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत खुश है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत हैप्पी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का खुशी का माहौल है। यहाँ इसरो के कमांड सेंटर के बाहर जो कंट्रोल सेंटर है, उसके बाहर जिस तरह से या जो मीडिया सेंटर बनाया गया है, उसके बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। वहाँ भी सब लोग काफ़ी खुश हैं, यहाँ भी खुशी का माहौल है और हर तरफ एक ऐतिहासिक पल, एक ऐसा क्षण जिसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की वैज्ञानिकों ने। ये ऐतिहासिक पल इसरो के लिए, ऐतिहासिक पल देश के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, सभी देशवासियों के लिए भारत ने एक नई कामयाबी, एक इतिहास रच दिया है। बेंगलुरु के कमांड सेंटर से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और लैंडिंग के दौरान नेहरू
तारामंडल दिल्ली में मौजूद रहे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर चंद्रमा के हो चुकी है और विक्रम जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। भारत ने एक इतिहास रच दिया। सुबह से हूँ, मेरी तपस्या ऐसा लगता है भगवान ने सुन ली है, वैज्ञानिकों की तपस्या सुन ली है। मेरे आंखों में खुशी के आंसू हैं, मैं कहीं रो ना दूं ऐसा लग रहा है। भारत माता की जय हुई है, चांद पर हम पहुंचे, ये भारत के लिए बड़ा स्वर्णिम क्षण है, बहुत खुशी की बात है। ये आप देखिए नेहरू प्लेनेटोरियम की मैं तस्वीर आकर दिखाता हूँ। आइए थोड़ा सा और हम आगे आपको लेकर चलते हैं। ये नेहरू प्लेनेटोरियम में आज सुबह से लगातार लोग यहाँ पर बने हुए थे और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों को लेकर। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। ये एक इतिहास बनाया है और ऐसे तमाम सारे युवा इस पूरे अंतरिक्ष विज्ञान में जो उपलब्धि हासिल की है उससे जरूर इंस्पायर होंगे। ये है माहौल नेहरू प्लेनेटोरियम का, हर चेहरे पर खुशी है। सारे लोगों की जो खुशी है वो देखते ही बन रही है। लोगों से बात करेंगे। मैम ये देखिए मैम क्या लग रहा है, आपकी पीढ़ी ने कभी सोचा था कि इस तरीके का मुकाम हासिल कर? कभी भी नहीं सोचा था ऐसा कि हमारी पीढ़ी ऐसा करेगी, हमारे देश के बच्चे इतना अच्छा काम करेंगे, कभी भी नहीं विश्वास करा था। और ये सब संभव मोदी जी की सरकार की वजह से सब वैज्ञानिकों को, सब युवाओं को उत्साह मिला। इसी तरह से उत्साह मिलता रहे उनको। ये माता जी भावुक हो गई हैं इस लम्हे को बयां करते करते। तो ये उपलब्धि है कहीं ना कहीं, जिस चीज का इंतजार वर्षों से, कई साल से है, वो आज सपना साकार हो चुका है और भारत अंतरिक्ष की उस रेस में अब सबसे आगे निकल चुका है जिसमें तमाम सारे देश सपना देखते हैं। नेहरू प्लेनेटोरियम से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। कितना बड़ा गर्व का लम्हा आप लोगों के लिए? ये बहुत बड़ा गर्व का लम्हा होगा सिंस इधर आके देखना लोगों को एट द टाइम टू लुक वेयर दे आर एक्चुअली सो एनर्जेटिक टू नो अबाउट द इंडियन स्पेसक्राफ्ट एंड आई एम लाइक इट्स वेरी प्राउड। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। वी हैव वेटेड ऑल फॉर अ लाइफ टाइम फॉर एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। क्या देखा आप लोगों ने? मैंने चंद्रयान 3 लैंड होते हुए देखा और मैं ज्यादा एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होके। कितने एक्साइटेड हैं और क्या फील कर रहे हैं, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप लोग? मैं ज्यादा एक्साइटेड है और मुझे ये पसंद आया कि ये इंडिया का मिशन कामयाब हुआ है। It is really very proud moment that India in the first try has reached the South Pole and India is the first country to do this. इतना प्राउड कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लाइक दिस मूवमेंट वाज जस्ट ए हार्टली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल हु वर फॉर साइंटिस्ट। आप लोग अपना वो भी दिखाइए। आप लोगों ने लैंडर रोवर बनाया था बच्चों के लिए। आज बहुत ही खास लम्हा मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में था। ये बच्चे वर्कशॉप में शामिल हुए थे। चंद्रयान 3 इन्होंने लैंडर और रोवर बनाया था और उसके बाद आपको लग रहा था कि जब आप इस हॉल में आएंगे तो आप लोग इस मिशन के कामयाब होने का गवाह बनेंगे। आप लोगों को लग रहा था, उम्मीदें थी? नहीं बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे जो सर थे उनका जो स्पीच था सुन के बहुत अच्छा लगा और जो एक्साइटमेंट हमने इधर देखी और जो टीवी पे हुआ, स्क्रीन पे हुआ, वो देख के हमारे होश खो गए थे हमने। और गाजियाबाद से अश्विन सिंह बता रहे हैं वहां पे लोगों का उत्साह। हमने कर दिखाया। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रमा के सतह पर हो गई। ये हर एक भारतीय के लिए गौरव का पल है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद कई छात्र हैं, काफी उत्साहित हैं इस लैंडिंग से। आइए इन छात्रों से बात करते हैं, कितने उत्साहित हैं आप लोग? ये लैंडिंग बहुत ही सफलतापूर्वक हुई है और हर भारतीय के लिए गौरव करने का पल है। आपका नाम? जी मेरा नाम दीक्षा है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ और आज मैं इतना गौरव महसूस कर रही हूँ अपने देश के लिए, अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर जिन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान साबित किया है पूरी दुनिया के सामने कि हमारा देश किसी से कम नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा। मैं तो प्रे कर रही थी बहुत, और जब भी मैं देख रही थी तो मैंने स्क्रंची जैसे बनाई हुई थी। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और
हो गया तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। खुशी का पल है भारत के लिए बहुत ज्यादा। हाँ, सभी को बहुत बहुत बधाई, साइंटिस्ट को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साइंटिस्टों ने वो कर दिखाया जो बाकी देश नहीं कर पाए। आप टीचर्स कितने खुश हैं इसको लेकर? बहुत ज्यादा खुश, अपार प्रसन्नता हो रही है कि हमारा भारतवर्ष इतने ऊंचे पहुंच गया, रूस को भी पीछे छोड़ दिया। हमारे साइंटिस्टों ने कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। बिल्कुल, वो तो इतने कहना चाहिए हमारे लिए पात्र है कि उनका सम्मान पर सम्मान होना चाहिए। तो काफी देख सकते हैं कि आप काफी एक्साइटेड हैं छात्र, और यहाँ पे ना सिर्फ स्कूल के टीचर्स बल्कि छात्र, स्कूल टीचर सभी लोग इस एंजॉय कर रहे हैं इस पल को, जो हर एक भारतीय के लिए गौरवपूर्ण समय है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की सालाना आधार पर 42% बढ़कर 23,532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही का ये EBITDA 2019 के पूरे वित्त वर्ष के EBITDA 24,780 करोड़ के लगभग बराबर है। अडानी समूह के लिए अच्छा कैश फ्लो जनरेट करने वाला इंफ्रा और यूटिलिटी प्लेटफॉर्म सेगमेंट ने के समूह के कुल EBITDA के 86% का योगदान दिया है। इस सेगमेंट से समूह को 20,233 करोड़ का EBITDA मिला है। इस मौके में हुए जबरदस्त मुनाफे से अडानी समूह में लिक्विडिटी भी काफी मजबूत हुई है। जून 2023 के आखिर तक समूह का कैश बैलेंस 42,115 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाही से 4.2% ज्यादा है। और जाते जाते खबर मिजोरम से आई है। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 18 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मरने वाले मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए गए हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के समय 35 से 40 लोग वहां पर मौजूद। तो इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।